for Manuscripts was established in the year 2003 with a view to preserving and conserving the cumulative knowledge of Indian tradition in fields of diverse learning contained in the manuscript, as well as disseminating their contents to scholars and people at large. The mission has come a long way since then and has fruitfully contributed to creating a database of manuscripts, digitizing them, training conservators all over the country, creating a resource pool of manuscriptologists and paleographists, and providing support to scholars to prepare the critical edition of unpublished manuscripts. In order to disseminate the knowledge content of manuscripts, the mission organizes seminars and Tattva lectures by eminent scholars. The process of these seminars and lectures are published under Samshika and Tattavada series. All the publications of the mission are also accessible on the website of the NMN, nomami.gov.in, to render them accessible to a much larger audience than would have been otherwise possible. Ever supportive and encouraging Member Secretary of IGNCA, Dr. Sachidananda Joshi, and the dynamic director of NMM, Professor Pratapanand Jha, have visualized the virtual presentation of Tattavada lectures in order to ensure continuity of this lecture series even in the adverse pandemic situation. Today, we present an eminent scholar, Professor Brajesh Kumar Shukla, a Padma Shri awardee, as the speaker of Tattavada lecture. Dr. Shukla is the professor in Lucknow University. His specialization encompasses Kavya Shastra, Sahitya, Puran, Upapuran, Jyotish, Darshan, Vyakaran, Ved, Karmakanda, Dharma Shastra, and Tantra. A number of books and research papers have been published in India and abroad under his name. Today, Professor Brajesh Kumar Shukla will be presenting the significance of Sri Chakra, the significant symbol of Tantra philosophy. And the session will be chaired by Dr. Madhu Khanna, DPhil from Oxford University and well-known scholar of Tantra. Dr. Khanna is a Tagore National Fellow, National Museum, New Delhi, and former director of Center for Comparative Religions and Civilizations, Jamia Millia Islamia, New Delhi. Her specialization in Oxford was in Hindu Shakta Tantra with special reference to the cult of goddess Tripura Sundari. Dr. Khanna has worked extensively on Agamic sources from Kashmir. Many books and research papers go to her credit. May I request Chairperson Dr. Madhu Khanna to begin today's session. Thank you very much for inviting me to IGNCA. It's my old home in Boston. I've been for many years as a research associate, and I'm really happy to be conducting today's lecture. I want to express my deep gratitude to the Member Secretary, to the Trust of IGNCA, to Srimati Sanghamitra ji for inviting me to chair today's important lecture. तो मैं अब हिंदी में कुछ बोलना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं आज के व्याख्यान में मुझे आमंत्रित करने के लिए IGNCA के प्रति आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। आज का विषय बहुत ही रहस्यमय और गुह्य है और एक ये बहुत ही पुरानी परंपरा है जिसके बारे में बहुत शोध नहीं हुआ। तो बिना कुछ समय बर्बाद किए सबसे पहले मैं
प्रोफेसर ब्रजेश कुमार शुक्ला, जो कि आज के वक्ता हैं, मैं उनसे अनुरोध करती हूं कि आप कृपा करके अपना भाषण शुरू करें। श्रींकाराम्बुजहंसिका कृतजना क्षेमंकरी शंकरी श्रृंगारैकरसाकरस्य मदना सुज्जीविका बल्लरी श्रीकामेशरः सखी च ललिता श्रीमत् गुहाराधिता श्रीचक्राधिनिवासिनी विजयते श्रीराजराजेश्वरी श्रीराजराजेश्वरी। सर्वेभ्यो नमो नमः। आज इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन के द्वारा आयोजित तत्वबोध व्याख्यान की अद्यतन श्रृंखला में समागत मिशन के मेंबर सेक्रेटरी डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी जी, राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन के निदेशक प्रोफेसर प्रतापानंद झा जी, मिशन की प्रकाशन समन्वयक आदरणीय डॉक्टर संघमित्रा बसु जी, आज इस व्याख्यान की अध्यक्षता कर रही चेयरपर्सन आदरणीय प्रोफेसर मधु खन्ना जी, पांडुलिपि मिशन के अन्य अधिकारीगण, कर्मचारीगण तथा व्याख्यान श्रवण भाजन हमसे जुड़े हुए सभी विद्वज्जन, छात्र छात्राएं। आज अत्यंत सौभाग्य का विषय है कि राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन के द्वारा आयोजित तत्वबोध व्याख्यान के लिए मुझे आमंत्रित किया गया है। मैं राष्ट्रीय कला केंद्र राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन के मेंबर सेक्रेटरी डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी जी का आभारी हूं और आपको धन्यवाद प्रदान करता हूं कि आपके द्वारा राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन का कार्य क्षेत्र बढ़ाया गया है। देश विदेश के लोग इस संस्था से जुड़े। अच्छी अच्छी बातें पढ़ाने का कुछ नहीं अध्यक्षा चेयरपर्सन प्रोफेसर मधु खन्ना जी भी वर्धापन और धन्यवाद की पात्रा हैं, जिनके अध्यक्षत्व में ये व्याख्यान समायोजित हो रहा है। से ही ये जो है व्याख्यान आयोजित हुआ है। आप प्रेरणा की स्रोत हैं और विद्वत समन्वयक हैं, जिनसे इस संदर्भ में कई बार वार्ता हुई है। मैं आपको हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं। इसके अतिरिक्त नेशनल मनुष्य के अन्य अधिकारी, कर्मचारी एवं प्राविधिक कर्मचारी जिनका भी इस कार्य में योगदान है, आप सभी को मेरा धन्यवाद तथा आभार अर्पित हो। जसवीर सिंह जी को भी मेरा धन्यवाद। वो इस व्याख्यान के समायोजक हैं, का आयोजन कर रहे हैं। इस व्याख्यान को सुन रहे हैं विद्वज्जनों, शोधकर्ताओं तथा उन सभी को मेरा धन्यवाद, अभिनंदन और वंदन। आज के तत्वबोध व्याख्यान का विषय है श्री चक्र स्वरूप विवक्ष। ये अत्यंत रोचक टेक्निकल विषय है, जैसा कि अभी डॉक्टर मधु खन्ना जी ने आपको बताया। आप सभी लोग जानते हैं कि जो ये आगम संस्कृत साहित्य की अमूल्य निधि है, साक्षात भगवान शिव के मुख से निश्रित साहित्य, जिसमें ज्ञान का अप्रतिम भंडार निहित है, सिद्धियों का रहस्य अंकित है और विविध देवताओं की उपासना का सम्यक विनियोग दृष्टिगत होता है। उन्हें आगम अथवा तंत्र के नाम से अभिहित किया जाता है। वैष्णवागम, शैवागम, शाक्तागम, सौरागम तथा गणपत्यागम, इन 5 आगमों का उल्लेख तंत्र साहित्य में अधिगत होता है। आगम परंपरा में देवता विग्रह मूर्ति के रूप में कहीं प्रतिष्ठित होता है, जिसे ध्यान के अंतर्गत स्वीकार किया गया है। तंत्र प्रतिपादित अंतर्याग तथा बहिर्याग करने के लिए
आगमों के अंतर्गत मंडल चक्र अथवा यंत्र के रूप में कतिपय आकृतियां प्राप्त होती हैं। प्रत्येक देवता का कोई मंडल, चक्र या यंत्र होता है, जिसके मध्य में बिंदु रूपेण तत्त देवता की प्रतिष्ठा होती है। बहिर्याग में मंडल चक्र या यंत्र को आकृति के रूप में बनाकर उस पर विविध देवताओं की पूजा करते हुए अंत में प्रधान जो देवता है उसकी बिंदुस्थ के रूप में पूजा की जाती है। इस प्रकार जब हम अंतर्याग करते हैं तो उस मंडल या चक्र को अपने शरीर के चक्रों में अथवा अपने शरीर के अवयवों में स्थापित करते हुए श्वास प्रश्वास के द्वारा अथवा प्राणायाम के माध्यम से उसकी गति से, ध्यान से चक्र का साधन होता है। ये आगम की साधना पद्धति है। आगम भेद से मंडलों एवं चक्रों में भेद दृष्टिगत होता है। इसी मंडल या चक्र अथवा यंत्र के रूप में भगवती त्रिपुर सुंदरी के आराधन का केंद्र श्री चक्र है, जिसे शाक्तागमों में प्रधान रूपेण वर्णित किया गया है। श्री चक्र भगवती त्रिपुर सुंदरी का निवास मंदिर है। 10 महाविद्याओं में भगवती त्रिपुर सुंदरी षोडशी के नाम से विख्यात हैं और वह त्रिपुरा, भगवती त्रिपुरा जो हैं भोग मोक्ष दोनों को प्रदान करने वाली हैं। मैं सामने चित्र के माध्यम से स्क्रीन पर इसका जो यंत्र है उसका प्रदर्शन कर रहा हूं। ये भोग और मोक्ष की कैसे प्रदात्री हैं, जैसा कि लिखा है, यत्रास्ति भोगो नहीं तत्र मोक्षो, यत्रास्ति मोक्षो नहीं तत्र भोगः। श्री सुंदरी साधन तत्पराणाम भोगश्च मोक्षश्च करस्थयेव। जहां पर भोग है वहां पर मोक्ष की गति नहीं है, जहां पर मोक्ष है वहां पर भोग नहीं है। लेकिन जो श्री सुंदरी भगवती त्रिपुर सुंदरी के चक्र की आराधना करते हैं उनको भोग और मोक्ष ये दोनों गतिविधियां प्राप्त होती हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि वैष्णवागम, शैवागम तथा शाक्तागम तीनों में श्री चक्र पर का विधान विविध पद्धतियों के साथ होता है, परंतु जो विशेषतः शाक्तागम में श्री चक्र को चक्रराज की संज्ञा प्राप्त है, सर्वश्रेष्ठ स्वीकार किया गया है। श्री विद्यारणव तंत्र, ज्ञानारणव तंत्र, शारदा मंत्र महोदधि, परशुराम कल्पसूत्र, सौभाग्य रत्नाकर, सुंदरी महोदय तथा सौंदर्य लहरी आदि ग्रंथों में श्री चक्र का स्वरूप बतलाया गया है। अब श्री चक्र का हम स्वरूप बतला रहे हैं, परंतु ये जो हमारी वैदिक परंपरा है उसमें श्री चक्र का स्वरूप कहीं प्रतिष्ठित है, क्योंकि वेदा सर्वम प्रतिष्ठितम, ऐसी परंपरा के अनुसार हमारा समग्र ज्ञान से ही प्रादुर्भूत हुआ है। अतः श्री चक्र की वैदिक अवधारणा पर विचार करना आवश्यक है। त्रिपुर महिम्न स्तोत्र में श्री चक्र को श्रुति मूल कोश कहा गया। श्री चक्रम श्रुति मूल कोश इति संसार चक्रात्मकम। ये संसार चक्र संपूर्ण ब्रह्मांड का जो प्रतीक है, ऐसा श्री चक्र जो है श्रुति मूल कोश, तो श्रुति के मूल में स्थित कोश है। इससे ये पता चलता है कि ये जो श्री चक्र है वो कहीं ना कहीं वेद से प्रतिष्ठित हुआ है। श्री चक्र में 5 और 4 मिलाकर के 9 चक्रों का प्रयोग होता है। ऋग्वेद के मंत्रों में इसे देखा जा सकता है। ऋग्वेद में आया हुआ है, पंचारे चक्रे परिवर्तमाने तस्मिन् आतस्थु भुवनानि स्व, अर्थात 5 चक्र हैं, पंचार चक्र की बात कही गई। और पुनश्च चत्वारिं बिभ्रत हेमयन्तः, ऐसा कहा गया। फिर 4 चक्रों की बात कही गई। यहाँ पर जो ईंग शब्द आया है, काम कला विलास नामक ग्रंथ है उसमें इसकी व्याख्या की गई है। वहां पर लिखा गया है, यत्र ईंग शब्दः काम कला वाचकः अनेन काम कला रूपम बिंदुम स्फुरयति, अर्थात ये जो ईंग है वो काम कला का वाची है। इससे ऋग्वेद में श्री चक्र के बीज स्पष्ट रूपेण देखे जा सकते हैं। ऋग्वेद प्रथम मंडल के 34वें सूक्त के प्रथम मंत्र में योर ही यंत्रम ऐसा उल्लेख आया है। यहाँ तुम दोनों का यंत्र, इस कथन से शिव और शक्ति के यंत्र श्री चक्र का उल्लेख प्रतीत होता है। इससे पता चलता है कि हमारा जो वेद है उसमें इसके बीज जो हैं
पड़े हुए हैं। आप देखें तो भगवती जो त्रिपुर सुंदरी का जिसमें वर्णन किया गया है, ऐसी जो सौंदर्य लहरी है, वहां पर उसकी जो एक लक्ष्मीधरा टीका है उसमें भैरव यामल का एक वचन उद्धृत है। वहां पर इस वचन की पुष्टि की गई है, जो हम वेद के वचनों को उद्धृत कर रहे हैं उनके वचनों की पुष्टि की गई है। क्या कहा गया? चतुर्भी शिव चक्रैश्च शक्ति चक्रैश्च पंचभी नवचक्रैश्च संसिद्धम श्री चक्रम शिवयो बपुः। 4 जो हैं शिव चक्र हैं और 5 शक्ति के चक्र हैं। इन 9 चक्रों से जो निर्मित हो रहा है वो श्री चक्र शिवा अर्थात शक्ति और शिव का जो है बदन है, शरीर है। यहाँ पर शिवयो पद में शिव और शक्ति का तात्पर्य है। श्री चक्र में अधोमुख 4 त्रिकोण हैं, शिवात्मक हैं, तथा ऊर्ध्वमुख 5 जो त्रिकोण हैं वो शक्तिमयात्मक। इन त्रिकोणों के द्वारा अर्थात परस्पर मिलन से 43 त्रिकोणात्मक स्वरूप बनते हैं। आचार्य शंकर ने सौंदर्य लहरी में ये लिखा हुआ है, चतुर्भी श्रीकंठई शिव युवती भी पंचभिरपि प्रभिन्नाभिर संभोर नवभिरपि मूल प्रकृति भी त्रयश्चत्वारिंशत् वसुदल कलास्त्र त्रिवलय त्रिखा भी सार्धम तव शरण कोणा परिणता। इस प्रकार से 43 कोण इसमें बनते हैं, जो आचार्य शंकर ने भी अपनी सौंदर्य लहरी में जिनका जिक्र किया है भी उल्लेख किया है। और इस प्रकार से हम जब देखते हैं तो इनसे बनने वाले जो चक्र हैं वो त्रिकोण, अष्टकोण, दशार युग्म, चतुर्दश कोण, अष्टदल, षोडश दल और त्रिवृत्त, ये 8 चक्र हैं। और बिंदु सुंदरी का प्रतीक है, वहां पर बिंदु में सुंदरी है, तथा भूपुर रूप 9 द्वारों से श्री चक्र जो है आवृत है। ये बात तंत्र के ग्रंथों में आई है, जहां पर लिखा गया बिंदु त्रिकोण वसुकोण दशार युग्म मन्वस्त्र नाग दल संयुत षोडशारम त्रयं च धरणी सदन त्रयं च श्री चक्र मुदितम पर देवताया, श्री चक्र मुदितम पर देवताया। इसी तथ्य को अथर्ववेद में इस प्रकार कहा गया है, अष्टाचक्रा नवद्वार अयोध्या स्वर्गो लोको ज्योतिषा। यहाँ पर अष्ट चक्रों त्रिकोण रूपी द्वारों से युक्त देवताओं की नगरी अयोध्या है। अंतर्गत त्रिकोण के मध्य में बिंदु की, बिंदु क्या है? त्रिपुर सुंदरी का प्रतीक है और वही जो है हिरण्यमय कोश है। और ये जो हिरण्यमय शब्द अथर्ववेद में बिंदु का प्रतीक माना गया है। वहां पर कहा गया है कि हिरण्यमयो विद्युः, अथर्ववेद में आया है हिरण्यमयो विद्युः। इस बिंदु में ही भगवती का निवास है, जो स्वर्ग वो सुंदरी के तेज से आती है। काम कला विलास ग्रंथ में ये पूरी पुर्यष्टक नाम से बतलाई गई है। ये श्री चक्र का शरीर है जो देवी की संविदात्मा है। पुर्यष्टकम में वेदम चक्र तनु संविदात्मनो देव्य, वहां पर ऐसा लिखा है। अथर्ववेद में ही कई मंत्र आते हैं जहां पर इसका उल्लेख किया गया है, तस्मिन् हिरण्मये कोशे ते अरे त्रिप्रतिष्ठिरे तथा पुंडरीकम नवद्वारम त्रिभिर्गुणेभिर आवृतम आदि मंत्रांश अथर्ववेद के हैं। ये सभी श्री चक्र की ओर संकेत करते हैं। श्री चक्र की उपासना करने वाले प्रश्न नाम के मुनियों का भी उल्लेख है। प्रश्नयो नाम मुनया श्री विद्योपासका मिथा। सौंदर्य लहरी की लक्ष्मीधरा टीका है और लक्ष्मीधरा टीका में रुद्रयामल का एक श्लोक उद्धृत है, इसमें प्रश्न नामक ऋषि श्री चक्र में समाहित होकर के इस चक्र विद्या जो देव गंधर्व इत्यादि के द्वारा पूजित है इसकी उपासना किया करते थे। प्रश्नयो नाम मुनयः सर्वे चक्र समाश्रयः, प्रश्नयो नाम मुनयः सर्वे चक्र समाश्रयः सेवमानस चक्र विद्याम देव गंधर्व पूजिताम। ये प्रश्न नामक मुनि वैदिक, जैसा कि तैतरीयारण्यक में उल्लिखित है
इमानुकंघो नाशीषधेमा इत्यारंभ ऋषिभिर अदात प्रश्न भी, यहाँ पर ऋषि अदात प्रश्न भी, प्रश्नों का उल्लेख जो है वेद में आया है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि श्री चक्र का मूल स्रोत जो है वैदिक है। पुनश्च तंत्रागम में इसे श्री विद्या के रूप में विस्तार पूर्वक स्वीकृत किया गया है। अब श्री विद्या का जो श्री यंत्र का या श्री चक्र का जो तांत्रिक स्वरूप है, उस तांत्रिक स्वरूप को हम यहाँ स्पष्ट करना चाहते हैं। अब देखिए, श्री चक्र में जो है ये बतलाया गया है कि ये किस प्रकार का होता है, इसके स्वरूप की चर्चा की गई है। आकृति के अनुसार इसके 3 स्वरूप होते हैं, मेरु पृष्ठ, भूपृष्ठ, कूर्म पृष्ठ। धातु अथवा पत्थर या स्फटिक इत्यादि पर उन्नत रूपेण खोद करके बनाया गया जो श्री चक्र है वो मेरु पृष्ठ कहलाता है और ये सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तंत्र में आया है कि श्री चक्रम देवेशी मेरु रूपम न संशय। दूसरा क्या है, रजत पर, स्वर्ण पर अथवा ताम्रपत्र पर, भुज पर जो बनाया गया चक्र है वो भूपृष्ठ कहलाता है। स्वर्ण, चांदी, स्फटिक अथवा ताम्रपत्र पर कूर्म चक्र बनाया जाए, कूर्म बनाया जाए और उस पर श्री यंत्र उन्नत रूप में प्रतिष्ठित किया जाए तो उसको कूर्म पृष्ठ कहा जाता है। साधक के भेद से इन चक्रों की उपासना बतलाई गई है। यहाँ विस्तार के भय से हम उनका उल्लेख नहीं करेंगे। बिंदु, त्रिकोण, अष्टकोण, अंतर्दशार, बहिर्दशार, चतुर्दश कोण, अष्टदल कमल, षोडशार, वृत्तत्रय तथा 3 भूपुरुष से निर्मित श्री चक्र होता है। आपने अभी चित्र में उसका दर्शन किया है। अब श्री चक्र के निर्माण तथा पूजा में 3 क्रम होते हैं, सृष्टि क्रम, स्थित क्रम और संहार क्रम। भूपुर, त्रिवृत्त, षोडश दल तथा अष्टदल ये सृष्टि क्रम है। चतुर्दशार से बहिर्दशार फिर अंतर्दशार ये अगर हम रखते हैं तो ये स्थिति क्रम है। अष्टार, त्रिकोण एवं बिंदु ये जो है संहार क्रम है। अब इसका स्वरूप क्या है, मैं यहाँ पर श्री चक्र के स्वरूप उसके अवयवों के अनुसार बतलाना चाहता हूँ। संक्षेप में मैं श्री चक्र के जो स्वरूप को बतलाऊंगा। श्री चक्र का जो दूसरा नाम है वो चिंतामणि ग्रह भी है। इसका नाम चिंतामणि ग्रह है। ये बात सौंदर्य लहरी में भी आई है और अन्यत्र भी आई है। तो सबसे पहले बिंदु, त्रिकोण, बशुकोण, दशार, युग्म इत्यादि की बात आई है तो बिंदु को हम लेते हैं। ये जो बिंदु है इसका वर्ण जो है रक्त है, लाल वर्ण का है और ये सर्वानंदमय चक्र भी कहा जाता है। इसमें भगवती स्वयं विराजमान है बिंदु में और ये मोक्ष का प्रदाता है। बिंदु में भगवती त्रिपुर सुंदरी का स्थान है, इसीलिए ये जो है सुधा सिंधु भी कहा जाता है। कहा गया है बिंदु स्थानम सुधा सिंधु पंचयोन्या सुरद्रमः। बिंदु स्थानम सुधा सिंधु पंचयोन्या सुरद्रमः तत्रैव नीप श्रेणी चा तन्मध्ये मणिमंडपम तत्र चिंता मणिकृतम देव्या मंदिरम उत्तमम। अर्थात बिंदु स्थान सुधा सिंधु है और 5 जो कोण हैं, त्रिकोण हैं, वो कल्प वृक्ष हैं। वहीं पर कदम्बों की श्रेणी है और उसके अंतर्गत मणिमंडप बना हुआ है जहां पर भगवती त्रिपुर सुंदरी विराजमान है। शंकराचार्य ने बिंदु स्थान में भगवती त्रिपुरा का स्थान बतलाया है। वहां पर सुधा सिंधु के मध्य में कल्प वृक्षों की वाटिका और कदम्ब का वन है। इस ऐसे चिंतामणि ग्रह में शिवाकार मंत्र के अंतर्गत परम शिव रूपी पर्यंक पर भगवती चिदानंद लहरी जो त्रिपुर सुंदरी हैं वो विराजमान हैं। सुधा सिंधुर्मध्ये सुरबिटपिवाटी परिव्रते मणिद्वीपे नीपो वनवती चिंता मणिग्रहे शिवाकारे मंचे परम शिव परयंक निलयाम भजन्ति त्वां धन्या कतिचद चिदानंद लहरी। ये जो अंतर्याग होता है, अंतर्याग में ये बिंदु सहस्त्रार चक्र का प्रतिनिधित्व करता है। मूलाधार चक्र से उत्थित जो कुंडलनी है वो सहस्त्रार रूपी सुधा सिंधु में निमज्जित होकर के अमृत का पान करती है। सहस्त्रारे पद में सह रहस्य पत्या विरहस्य, ऐसा वहां पर उल्लेख किया गया है सौंदर्य लहरी में। दूसरा जो इसका है वो त्रिकोण है, ये पीत वर्ण का है और इसको सर्वसिद्धि प्रद चक्र की संज्ञा प्राप्त है। इसकी उपासना अथवा इस पर ध्यान करने से सभी वस्तुओं की सिद्धि होती है। त्रिकोण में यहाँ पर कामेश्वरी, रुद्र शक्ति
वज्रेश्वरी विष्णु शक्ति तथा भगमाला ब्रह्म शक्ति का निवास है। अंतर्याग में ये जो गुदामूल के द्वयंगुल मूलाधार चक्र में ये जो त्रिकोण है वो प्रतिष्ठित है। अब तीसरा जो इस अष्टकोण 8 कोण होते हैं, जैसा कि चित्र में आपने देखा है, ये हरित वर्ण का है। इसे हम सर्व रोग हर चक्र कहते हैं। इसमें उपासना करने से सारे रोगों से मुक्ति मिल जाती है। यहाँ पर अष्ट योगिनियों की स्थिति है, जिनके नाम है बशिनी, कौमारी, मोहिनी, विमला, अरुणा, जैनी, सर्वेशी, कौलिनी। अंतर्याग में ये जो चक्र है स्वाधिष्ठान चक्र में अवस्थित है। स्वाधिष्ठान चक्र के अंतर्गत इसकी भावना की जाती है, ध्यान किया जाता है। अब जो अगला इसका स्वरूप है वो बहिर्दशार कोण है। ये जो बहिर्दशार कोण है वो कृष्ण वर्ण का है और इसमें इसको सर्व रक्षाकर चक्र भी कहा जाता है। इस पर उपासना करने पर साधक की सर्वविधि रक्षा होती है। इस चक्र में 10 योगिनियों की स्थिति है। उनके नाम वहां पर हैं सर्वज्ञा, सर्वशक्ति, सर्वेश्वर्य, फलप्रदा, सर्व ज्ञानमयी, सर्व व्याधि विनाशिनी, सर्वाघार स्वरूपा, सर्व पापहरा, सर्वानंद मति, सर्व रक्षा स्वरूपिणी, सर्वे शिवप्रदा। इस प्रकार से यहाँ पर ये इन योगिनियों की प्रतिष्ठा है, इनकी अर्चना की जाती है। पांचवा जो इसका स्वरूप है वो अंतर्दशार के रूप में है। ये रक्त वर्ण का है और इसको सर्वार्थ साधक चक्र की संज्ञा प्राप्त है। इसको सर्वार्थ साधक चक्र भी कहा जाता है। यहाँ पर सब साधक के लिए जो भी वस्तुएं होती हैं वो प्राप्त हो जाती हैं इसकी उपासना करने से। यहाँ पर 10 योगिनियां अवस्थित हैं। इसमें सर्व सिद्धि प्रदा, सर्व संपत प्रदा, सर्व प्रियंकरी, सर्व मंगलकारिणी, सर्व काम प्रदा, सर्व दुख विमोचनी, सर्व मृत्यु प्रशमनी, सर्व विघ्न नाशिनी, सर्वांग सुंदरी, सर्व सौभाग्यदायिनी। ये जो है 10 योगिनियां यहाँ पर विराजमान हैं। अंतर्याग में ये चक्र अनाहत चक्र में अवस्थित है। अनाहत चक्र का स्थान आप लोग जानते हैं कि हमारे हृदय में है। अब छठा जो है षष्ठ चतुर्दशार कोण है। चतुर्दश कोण इसमें जो है नील वर्ण का है और ये सर्व सौभाग्यदायक चक्र कहलाता है। जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका फल होता है। यहाँ पर चतुर्दश योगिनियों की पूजा की जाती है, उपासना होती है। उनके ये नाम आए हैं सर्व संशोभिणी, सर्व विद्रावणी, सर्वाकर्षणिका, सर्वाह्लादकरी, सर्व सम्मोहनी, सर्व स्तंभनकारिणी, सर्व गृम्भणी, सर्व वशंकरी, सर्व रंजनी, सर्वोन्मादनी, सर्वार्थ साधिनी, सर्व संपत् प्रपूरणी, सर्व मंत्रमयी, सर्व द्वंद्वक्षयंकरी। अंतर्याग में इस चक्र की स्थिति कंठ के विशुद्ध चक्र में बतलाई गई है, स्वीकार की गई है। और 7वां इसका जो है वो अष्टदल कमल है। ये पाटल वर्ण का है, गुलाबी है। इसे सर्व संशोभन चक्र की संज्ञा प्राप्त है। इससे साधक जो है प्रकृति में संशोभन उत्पन्न कर देता है इसकी उपासना से। इसमें जो है 8 योगिनियों की स्थापना होती है। अनंग कुसुमा, अनंग मेखला, अनंग मदना, अनंग मदनातुरा, अनंग रेखा, अनंग वेगा, अनंगांकुशा, अनंग मालिनी। अंतर्याग में ये जो चक्र है गुदा के पास अष्टदल कमल है, वहां पर अवस्थित है। अष्टदल कमल में अवस्थित है ये चक्र की भावना। वहां पर करने से सारी सिद्धियां अधिगत होती हैं। अगला जो है वो षोडशार है। षोडशार षोडश दल कमल है। ये चक्र जो है सर्वाशा परिपूरक चक्र भी कहलाता है। यहाँ पर ध्यान करने से सारी आशाएं परिपूर्ण हो जाती हैं। ये पीत वर्ण का है। यहाँ पर षोडश शक्तियों की अवस्थिति स्वीकार की गई है। कामाकर्षणी, बुद्ध्याकर्षणी, अहंकाराकर्षणी, शब्दाकर्षणी, स्पर्शाकर्षणी, रूपाकर्षणी, रसाकर्षणी, गंधाकर्षणी, चित्ताकर्षणी, धैर्याकर्षणी, नामाकर्षणी, बीजाकर्षणी, अमृताकर्षणी, स्मृत्याकर्षणी, शरीराकर्षणी, आत्माकर्षणी। और यहाँ पर अंतर्याग जब होता है तो इस चक्र का स्थान शरीर से पृथक, जहां पर साधक होता है वहीं पर शरीर से पृथक समक्ष सामने ही पृथ्वी पर अवस्थित माना जाता है। पृथ्वी पर इस चक्र का ध्यान किया जाता है। इसके बाद त्रिवृत्त आता है। देखिए त्रिवृत्त का अन्य जो संप्रदाय हैं
उनमें उल्लेख नहीं किया गया। कहीं कहीं तो केवल एक व्रत का उल्लेख किया गया है। केवल पूर्वानुयाय में इसकी चर्चा की गई है और वहां पर इसके जो 3 व्रत हैं उसमें पहला जो व्रत है उसमें काल रात्रि 29 मातृकाओं की उपासना होती है। द्वितीय व्रत में अमृतादि 16 मातृकाएं और तृतीय व्रत में कामेश्वरी इत्यादि 16 मात्राएं बतलाई गई हैं। जबकि पश्चिमामनाय, उत्तरामनाय और दक्षिणामनाय में इसकी चर्चा नहीं है। ये केवल व्रत जो है सभी चक्रों को आवृत करने के लिए कहा गया है, बतलाया गया है। जो नवा है इसका नवी वो चतुरस्र भूपुर है। भूपुर जो द्वार बने हुए हैं, जो आपने देखा होगा श्री यंत्र के अंतर्गत, श्री चक्र के अंतर्गत जो द्वार बने हुए हैं उनको भूपुर कहा जाता है। तो इसका दूसरा जो नाम है वो त्रैलोक्य मोहन चक्र है। इस पर उपासना करने से साधक के वश में सारे लोक हो जाते हैं, सारे लोग मोहित होने लगते हैं। भूपुर में 3 रेखाएं होती हैं जिसमें सिद्धियों का निवास बतलाया गया है। भूपुर की प्रथम जो रेखा है उसमें 10 सिद्धियों की स्थिति है। अणिमा, महिमा, लगिमा, ईशिता, वशिता, सिद्धि, प्राकाम्या, भुक्ति, इच्छा, प्राप्ति, सर्वकाम्या। भूपुर की जो मध्य रेखा हैं उसमें 8 दिशाओं में 8 देवियों की स्थापना होती है। उसमें कौन कौन सी हैं देवियां? ब्राह्मी, माहेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी, बाराही, इंद्राणी, चामुंडा तथा महालक्ष्मी। भूपुर की तृतीय रेखा में 10 मुद्राओं की अवस्थिति होती है जिसमें कि क्षोभणी, द्रावणी, आकर्षणी, वश्या, उन्मादिनी, महांकुशा, खेचरी, बीजा, योनि और त्रिखंडा। अंतर्याग में ये जो चक्र है भूपुर चक्र अज्ञा चक्र में स्थापित किया जाता है। इसका ध्यान अज्ञा चक्र में किया जाता है। अब चक्रोपासना की मैंने अभी विधियां बतलाई थी कि 2 विधियां होती हैं। नंबर 1 अंतर्याग और नंबर दूसरा है बहिर्याग। अंतर्याग में श्री चक्र को अपने शरीर में मनसा स्थापित करते हुए यद पिंडे तद ब्रह्मांडे ऐसी समष्टि से तादात्म्य का अवबोध साधक करता है और जब बिंदु तक अर्थात सहस्त्रार चक्र में सुषुम्ना के मार्ग से शक्ति को संचालित करता है तो शिव शक्ति का मेलन हो जाता है और इससे सिद्धियों की प्राप्ति होती है। ये अंतर्याग की पद्धति है। और बहिर्याग में क्या होता है? दूसरा जो इसका बहिर्याग है, बहिर्याग के अंतर्गत जो साधक है वो श्री चक्र को कहीं पर धातु में अथवा स्फटिक आदि पर उत्कीर्ण करवा करके कहे गए क्रम से उसका जो है भौतिक वस्तुओं से अर्चन करता है। प्रथमतया बहिर्याग होता है और तत्पश्चात अंतर्याग स्वयं होने लगता है। जब आप बहिर्याग करेंगे और बहिर्याग में आपको सिद्धि प्राप्त होगी तो अंतर्याग यानी वो जो श्री चक्र है वो आपके शरीर में स्वयं प्रतिष्ठित हो जाएगा। श्री चक्र में मैंने अभी बतलाया कि शिव के 4 चक्र हैं तथा शक्ति के 5 चक्र हैं। इस प्रकार 9 चक्रों से रचित श्री चक्र जो है वो शिव और शक्ति का संपृक्त रूप है। इसमें बिंदु, अष्टदल, षोडशदल तथा भूपुर ये 4 शिव के चक्र हैं। बिंदुश्चाष्ट जलम पद्मम पद्मम षोडश पत्रकम चतुरस्त्रम चत्वारि शिव चक्राणि अनुक्रमात्। त्रिकोण, अष्टकोण, बहिर्दशार, अंतर्दशार, चतुर्दशार ये 5 शक्ति के चक्र हैं। त्रिकोणम अष्टकोणम च दशकोण द्वयम तथा चतुर्दशारम चैतानि शक्ति चक्राणि 5 च। श्री चक्र एक पुरी है, श्री त्रिपुर सुंदरी का निवास मंदिर है। तैतरीयारण्यक में कहा गया है अमृतेन आवृताम पुरीम, ऐसा कह करके इसे अमृत से आवृत कराया गया है। बैंदो स्थान पीयूष का निर्झर है। जब शक्ति का सहस्त्रार चक्र में शिव के साथ सम्मिलन होता है तो अमृत बरसने लगता है, अमृत झरने लगता है। इसीलिए वेद में त्रिपुर सुंदरी के इस श्री चक्र रूपी ग्रह का नाम सरघा है। यम वाव सरघा तस्या अग्निरेव सारघम मधु, ये वाक्य तैतरीयारण्यक में आया उल्लिखित है। सौंदर्य लहरी की लक्ष्मीधरा जो टीका है उसमें इसकी व्याख्या करते हुए कहा गया है कि श्री चक्र अमृत निर्झर सरघा के रूप वाला है। सरघा संस्कृत में मधुमक्खी के छत्ते को कहते हैं जिसमें मधु होता है, परंतु वहां पर इसकी व्याख्या श्री चक्र के रूप में की गई है और ये एक अमृत सिंधु है। त्रिकोण का एक बिंदु भगवती का मुख है तथा 2 बिंदु स्तन युगल हैं। यही काम कला है। इससे जो है अमृत निर्झरित होता है।
देखिए जो मुख है और उसके बाद जो दो स्तन हैं, इसको मिला दीजिए तो त्रिकोण बनता है, और ये जो त्रिकोण है वही काम कला है। और इस तथ्य को आचार्य शंकर ने सौंदर्य लहरी में इस प्रकार से कहा था, मुखम बिंदुम कृत्वा कुछ युगमधस्तस्य तदहो हरार्धम ध्यायेद्यो हरमशिषिते मन्मथ कलाम। ये मनमथ कला है। इस मनमथ कला के बीज से, काम कला के बीज से युक्त चिंतामणि मंत्र बनता है। आप लोग सभी जानते होंगे महाकवि हर्ष, जिन्होंने नैषधि चरितम लिखा था, उन्होंने नैषधि चरितम के प्रत्येक शर के अंत के पद्य में लिखा है, तच्चिंतामणि मंत्र चिंतन फले। ये जो चिंतामणि नाम का मंत्र है वो भी भगवती त्रिपुरा का मंत्र है, जो मंत्र की यहाँ पर बात की गई है। इस सुधा सिंधु रूपी त्रिकोण के अंतर्गत बिंदु स्थान में विराजमान भगवती त्रिपुर सुंदरी का अनंत वैभव है। क्या वैभव है? ऐसा सिंहासन है जिसके मंच के चारों पाद ब्रह्मा विष्णु रुद्र तथा ईश्वर हैं। जो सैया है असुत, वो तो सदाशिव के रूप में विराजमान है। शैया पर कामेश्वर ही आच्छादन है, वही उसी की चद्दर है। उस अलंकृत आसन पर बिंदु स्वरूपिणी त्रिपुर सुंदरी की शोभा है। ब्रह्मादय चतुष्पादः कशिपुश्च सदाशिवा आच्छादनम तु कामेशः तत्रस्था सुंदरी कला, ऐसा उल्लेख आया है। और ये जो है, ये बात आपको सौंदर्य लहरी में भी मिलेगी। गतास्ते मंचत्वम द्रुहिण हरिरुद्रेश्वर भ्रता, गतास्ते मंचत्वम द्रुहिण हरिरुद्रेश्वर भ्रता, शिवच्छाया घटित कपट प्रच्छद पटा। इस रूप से। लेकिन ये ब्रह्मा विष्णु रुद्र ईश्वर और सदाशिव ये पांच महाप्रेत कहे जाते हैं। ब्रह्मा विष्णु रुद्रश्च ईश्वरश्च सदाशिवा इते पंच महाप्रेता पाद मूले व्यवस्थिता। यहाँ पंच महाप्रेतों का रहस्य ये है कि जब शरीर अथवा संसार जो पंच महाभूतों से निर्मित है, ऐसे पंच महाभूत वाला जब शरीर ये या संसार जब नष्ट हो जाता है, इससे हमारा कोई संपर्क नहीं रहता है, तो साधक जो है संसार से मुक्त हो जाता है और तभी शक्ति का जीव से मिलन होता है। यही सुंदरी कला अथवा पराविद्या परब्रह्म स्वरूपिणी त्रिपुर सुंदरी हैं, जो भोग और मोक्ष की प्रदात्री हैं। श्री विद्या अथवा श्री चक्र का दर्शन भी है, जो शाक्ताद्वैत के नाम से जाना जाता है। विश्व का उपादान कारण शक्ति है। शिव अखंड सत्तात्मक, उदासीन, निष्क्रिय एवं निरपेक्ष है। वो दृष्टा है। कैसे दृष्टा है? जैसा कि वो वेद में कहा गया है ना कि द्वासुपर्णा सयुजा सखाया इत्यादि में जिसकी बात कही गई है, वही शिव दृष्टा है। यद्यपि शिव और शक्ति दोनों त्रिकोण बिंदु यार ये क्या हो रहा है इसमें? हेलो हेलो सर कैमरा ऑन कर लीजिए अपना प्लीज। हेलो। शुक्ला जी अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। कैमरा बंद है आपका। कैमरा तो दिख रहा है, चित्र तो दिख रहा है। नहीं नहीं, यहाँ नहीं दिख रहा है। कैमरा तो रहा है, हम लोगों को दिख रहा है। कैमरे में तो आ रहा है, नहीं दिख रहा है सब। अग्निशोमात्मकम जगत के सिद्धांत को श्री विद्या दर्शन में स्वीकार किया गया है। श्री चक्र में अग्नि बिंदु है और सोम जो है वो त्रिकोण है। बिंदु शिव है और त्रिकोण सुंदरी कला अथवा काम कला है। बिंदु अर्थात शिव के त्रिकोण अर्थात कला का विक्षोभण करने पर अमृत झरता है। इस अमृत के निर्झरण से अष्टकोण, दशार युग्म, चतुर्दशार, अष्टदल कमल, षोडशार वृत्तत्र तथा भूपुर त्रयरूप संसार की सृष्टि होती है। पुनः शिव रूप बिंदु अपनी त्रिकोण रूपी शक्ति का काम कला का संहार क्रमशः भूपुर त्रय से करता हुआ त्रिकोणस्थ बिंदु में समाहित हो जाता है। यही प्रलय है, यही प्रलय है।
अर्थात सृष्टि का कारण बिंदु जिसे शिव शक्ति कहते हैं, वही है सुंदरी से निरंतर मिलकर के अमृत का क्षरण करता हुआ सृष्टि विस्तार करता है। यही श्री चक्र का सृष्टि का रहस्य है। श्री चक्र का विराट दर्शन है जिस पर अनेक ग्रंथों की रचना हो सकती है। श्री चक्र ब्रह्मांड तथा पिंडांड दोनों का निरूपण करता है। वो समष्टि और व्यष्टि दोनों का द्योतक है। श्री चक्र के नव चक्रों का अपना दर्शन है। मैंने यहाँ पर 9 चक्रों के दर्शन का उल्लेख नहीं किया है क्योंकि हमें उसके स्वरूप पर विचार करना था। बिंदु शिव शक्ति का संयुक्त रूप है तथा त्रिकोण के 3 बिंदु इच्छा, ज्ञान तथा क्रिया के सामरस्य के रूप में। प्रकाश तथा विमर्श दोनों सृष्टि के मूल तत्व हैं। जब साधक श्री चक्र रूपी ब्रह्मांड अथवा समष्टि में अपने अर्थात दृष्टि को ध्यानादि के द्वारा समाहित कर लेता है, जब बिंदु में नानात्व अर्थात अनेक चक्र संग्रहित होते हैं, तो साधक उसी आवर्त में सभी चक्रों को पार कर लेता है। उस सुंदरी कला रूप बिंदु में वो समाविष्ट हो जाता है। पुनः सृष्टि में उसका प्रत्यावर्तन नहीं होता। यद गत्वा न निर्वर्तन्ते तद धाम परमम मम, ऐसा गीता में जैसा कहा गया है, उसका प्रत्यावर्तन नहीं होता। यही संक्षेप में श्री चक्रोपासना में मुक्ति की अवस्था है, मुक्ति की अवधारणा है। श्री चक्र पर प्रायः सभी संप्रदायों में पूजा अथवा साधना की प्रक्रिया प्राप्त होती है। वैष्णव संप्रदाय के वैखानस आगम में श्री चक्र की अर्चना का विधान है। सांख्यायन शाखा में त्रिपुर सुंदरी के मंत्र का निर्देश किया गया है। कामो योनि कमला भद्रपाणिर गुहा हसा मातरिश्वाभमिंद्रा पुनर्गुहा सकला मायाचा पुरुषैषा विश्व मातादि विद्योमा, ऐसा वहां पर मंत्र का उद्धार किया गया है। शैव तथा शाक्त संप्रदायों में तो श्री चक्र की साधना प्राप्त ही होती है। वामाचार तथा दक्षिणाचार दोनों में श्री चक्र का अभ्यर्थन प्राप्त होता है। कौल रहस्य नामक ग्रंथ है जिसमें ये बतलाया गया है कि तो श्री चक्र है उसकी उपासना कुल क्रम से भी की जाती है। इससे मुख के अंतर्गत सुधा की धारा का प्रवाह होने लगता है। मुख के अंतर्गत सुधा बहने लगती है, अमृत आ जाता है। निधाय धाराम बदने सुधाया, निधाय धाराम बदने सुधाया, और श्री चक्रम अभ्यर्च कुल क्रमेण। श्री चक्र की साधना से ज्ञाता स्वात्मा तथा ज्ञान का एकीकरण हो जाता है। यही ज्ञान की प्राप्ति की चरमावस्था है जिससे मोक्ष अधिगत होता है। जैसा कि तंत्र राजतंत्र नामक ग्रंथ में उल्लिखित है, ज्ञाता स्वात्मा भवेद ज्ञानम अर्घम गेयम वही स्थितम श्री चक्र पूजनम तेषाम एकीकरण में स्थितम। ज्ञाता स्वात्मा अन्यात्मा और ज्ञान, इनका एकीकरण जब हो जाए तो वही मोक्ष की अवस्था होती है। यही श्री चक्र की पूजना, श्री चक्र की स्वरूप साधना से भुक्त तथा मुक्त दोनों अधिगत होती है। इससे शाश्वत रसानंद अथवा ब्रह्मानंद की प्राप्ति हो जाती है। तो साधक जब पूजा व्रतादि चर्या को स्वीकार नहीं करता, साध्य की प्राप्ति हो जाने पर साधन की व्यर्थता हो जाती है। जैसा कि अभिनव गुप्त ने लिखा था। अभिनव गुप्त ने क्या लिखा? जब इसका रसानंद आपको प्राप्त हो जाएगा, जब इसका जो है परम रस, श्री चक्र का परम रस प्राप्त हो जाएगा, तो आपको समाधि, योग, व्रत, मंत्र, मुद्रा और जप इत्यादि में कोई आपको आनंद नहीं मिलेगा, क्योंकि वो हो गई है। साधन की आवश्यकता नहीं होती है। अयम रसो ये न मनागवाप्ता, थोड़ा सा भी इसका रस अगर किसी ने प्राप्त कर लिया, थोड़ा सा आनंद प्राप्त कर लिया, तो अयम रसो ये न मनागवाप्ता स्वच्छंद चेष्टा निरतस्य तस्य। ये जो शिव है वो स्वच्छंद चेष्टा निरत है। ऐसे शिव का जो है, जो रसानंद है, जो शिव का जो मोक्ष का आनंद है, जो उसका परम आनंद है, परमानंद है, अगर किसी ने जरा से भी प्राप्त कर लिया तो अयम रसो ये न मनागवाप्तः स्वच्छंद चेष्टा निरतस्य तस्य समाधि योग व्रत मंत्र मुद्रा जपादिचर्या विषवद्विभान्ति। समाधि योग व्रत मंत्र मुद्रा जपादिचर्या विषवद्विभान्ति। इस प्रकार से मैंने श्री चक्र के स्वरूप के विषय में आपके सामने अपने कुछ विचार रखे हैं। कुछ इस प्रकार का मैंने प्रवचन दिया है। कदाचित
आपको भी इसका रसानंद प्राप्त हो गया होगा, तो अवश्य मैं अपने को कृतकृत समझूंगा। मैं इस समय जो नेशनल मस्कुलर जो मिशन की कार्य प्रणाली है, उसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। वहां के जो अधिकारी गण हैं, कर्मचारी गण हैं, जिनका पहले ही मैंने उल्लेख कर दिया है, सभी को विशेष रूप से धन्यवाद और आभार उनके प्रति प्रकट करता हूं कि उन लोगों ने, और विशेष रूप से डॉक्टर संघमित्रा बसु जी ने मुझे आमंत्रित किया और इस प्रकार का गुरुतर भार मेरे ऊपर डाला, जिसका पता नहीं कि मैंने सही रूपेण निर्वाह किया है अथवा नहीं किया है। इसके लिए तो जो साधक हैं, जो इसको सुनने वाले हैं, जो श्रवण करने वाले हैं, श्रवण मनन और निधिध्यासन करने वाले लोग हैं, वही प्रमाणभूत होंगे, वही प्रमाणभूत होंगे। ऐसा कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने तो सारा संपूर्ण सागर बिल्कुल 30 मिनट में इतने आयाम पे अपने विचार प्रकट किए कि हमें पता नहीं लग रहा कि हम कहाँ से इसको करें और कहाँ बंद। तो ये मैं कहना चाहती थी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही अति सुंदर आपने लेक्चर किया और कई आयामों पे आपने इसके बारे में, इसकी श्री चक्र के बारे में चर्चा की है। मैं ये कहना चाहती थी कि जब हम श्री चक्र की बात करते हैं, साहित्य को देखते हैं, तो ऐसा पाया जाता है कि शाक्त संप्रदाय कई प्रकार के हैं। आगम शाक्तिज्म है जो कि शैव आगम से जुड़ा हुआ है, कश्मीर की प्रणाली से जुड़ा हुआ है, दर्शन से जुड़ा हुआ है, प्रत्यभिज्ञा दर्शन से जुड़ा हुआ है, और दूसरी प्रणाली जो है शाक्त संप्रदायों की, वो वेद सम्मत है। तो आज का जो इतना सुंदर जो आपने विस्तार पूर्वक श्री चक्र का के कई आयामों पे अपने विचार प्रकट किए, सम्मत विचारों को आपने बड़ी आराम से, बड़ी सरलता से अच्छी तरह हमें समझाया और इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। परंतु आगम एक प्रणाली है, वेद दूसरी प्रणाली है, और हम देखते हैं कि ये जब दोनों प्रणाली मिल जाती हैं तो एक मिश्र प्रणाली बनती है, श्री चक्र पूजा की, उपासना की, दर्शन की, जो कि जितना साहित्य हुआ है साउथ इंडिया में, स्पेशली भास्कर राय जी ने जो लिखा है अपने कृतियों में, उससे पता लगता है कि उनकी कृतियों में दोनों प्रणालियां साथ आ जाती हैं और एक श्री चक्र का स्वरूप भी अलग आता है। तो जब हम वेद सम्मत की बात करते हैं, ये भी वेद सम्मत प्रणालियों की, शाक्त दर्शन की बात करते हैं या उसको समझना चाहते हैं, तो हमें ये हमको समझना पड़ेगा कि वेदों में की जो टिप्पणियां लिखी गई, टीकाएं लिखी गई, जैसे सौंदर्य लहरी की कितनी टीकाएं हैं, ये सब टीकाएं और भाष्य जो लिखे गए 15 शताब्दी के बाद या 13 शताब्दी के बाद, वो सब में आगमों का सिग्नेचर मिलता है, ये प्रमाण मिलता है। तो ये जो आपने जो इतनी अच्छी तरह समझाया, ये सौंदर्य लहरी की टीकाओं के आधार पे समझाया और आपने कई आयामों पे दृष्टिकोण दिया। पहले आपने किस तरह श्री विद्या संप्रदाय वेदों से जुड़ा है उसके बारे में बताया, फिर आपने कि श्री चक्र का मूर्ति स्वरूप क्या है, मेरु है, भ्रू प्रस्तार में उसकी पूजा होती है, और वो उसके ध्यान, जब हम श्री चक्र का ध्यान करते हैं तो पंच प्रेत आसन का ध्यान बहुत ही जरूरी होता है, और पंच प्रेत आसन का ध्यान बिंदु में होता है, उसका भी आपने बहुत सुंदर तरह हमें विस्तृत पूर्वक वर्णन किया। फिर आपने जो एक और
आयाम पे जो दृष्टिकोण दिया वो बहुत ही अच्छा था कि किस प्रकार श्री चक्र के नव आवरण, जो नव चक्र हैं, त्रैलोक्य मोहन से लेकर बिंदु तक, वो किस तरह कुंडलिनी के नव चक्रों में समाये हुए हैं और उससे अंतर्याग का एक स्वरूप हमारे सामने आता है। परंतु जब श्री चक्र की पूजा बहिर्याग से करते हैं तो एक एक चक्रों की पूजा होती है संहार क्रम में, सृष्टि क्रम में भी, और भी क्रम, नए नए क्रम उपासना हो सकती है। परंतु एक चीज जब मैं शोध कर रही थी आश्चर्यपूर्ण वो थी, वो परमानंद तंत्र में आती है कि श्री चक्र के 900 से भी अधिक स्वरूप हैं। जो आपने बताया वो खाली 3 मेन मूल स्वरूप हैं श्री चक्र के। जब हम आगमों की दृष्टि से श्री चक्र को समझना चाहते हैं तो ऐसा पाया जाता है कि श्री चक्र एक प्रपंच का स्वरूप है, पूरा प्रपंच का। और इसको समझने के लिए हमको प्रपंच की जितने भी तत्व हैं, 36 तत्व, वो सारे तत्वों को समझना पड़ेगा। और वो तत्व प्रकाश और विमर्श, शिव और शक्ति, चित स्वरूप से भिन्न वेद्य प्रथा तक सब स्तर उसमें समाये हुए हैं। और इसमें 3 स्तर हैं। पहला तो शुद्ध है, शुद्ध स्तर, जिसमें शिव शक्ति बीज स्वरूप विराजमान है। फिर उसके बाद दूसरा स्तर जो कि शुद्ध अशुद्ध है, जो कि अंशुक है, उसके आधार पे आते हैं। और उसके बाद जैसे ही हम इसके तीसरे स्तर में जाते हैं तो वो पंच महाभूतों की बात होती, पंच ज्ञानेंद्रियों की, पंच कर्मेंद्रियों की, पंच तन मात्रा की, प्रकृति, अहंकार, बुद्धि और मन। सो इस प्रकार सारे ही तत्व श्री चक्र में समाये हुए हैं। तो एक प्रकार वो प्रतिबिंब है। और जब हम आगम दृष्टिकोण से देखते हैं तो जैसे सृष्टि का सृजन हुआ, सृष्टि का सृजन बिंदु से हुआ, महाबिंदु से हुआ, और वो बिंदु 2 प्रकार का है। आपने उसके बाद भी चर्चा की थी। काम कला स्वरूप है, श्वेत बिंदु और रक्त बिंदु। और जब वो दोनों मिले होते हैं तो साम्य रस, उसको साम्य रस, शिव शक्ति के स्वरूप का साम्य रस का रूप दिया जाता है। जब वो बिंदु 2 हो जाते हैं तो वो सृष्टि का स्फुरन शुरू हो जाता है। तो ऐसे करके फिर धीरे 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 जब हम तीसरे स्तर में आते हैं तो तीसरा स्तर तो पंच महाभूतों का है। और इसमें चित स्वरूप से पृथ्वी तत्व, सारे ही तत्व इसमें विराजमान हैं। परंतु ये तत्व की जब हम पूजा करते हैं तो हम इन एक एक तत्व को भगवती का स्वरूप देते हैं, भगवती के अंग देवताओं का स्वरूप देते हैं। श्री चक्र में 110 देवियां विराजमान हैं जो कि भगवती से स्फुरन हुई हैं, भगवती से उनसे निकली हैं, जैसे किरणें सूर्य से निकलती हैं। और इसके अलावा श्री चक्र में जो नित्या शक्तिज हैं उनका बहुत ही जरूरी, उनका एक इम्पोर्टेंट प्लेस दी गई है। वो है कामेश्वरी, भगमालिनी, नित्यक्लेने, भैरंडे, अनी, वासनी, महामंजेश्वरी, परशिवृति, त्वरिते, कुल सुंदरी, नित्य, नील पताके, विजय, सर्वमंगले, ज्वाल मालिनी, चित्रे, महानृत्य। सो त्रिपुर सुंदरी पूर्णांगी हैं और ये उनकी षोडश कलाएं हैं और ये काल का स्वरूप है। सो दिक, काल, तत्व सब श्री चक्र में समाये हुए हैं। और जब हम श्री चक्र की उपासना की बात करते हैं तो बहुत सी प्रणालियां हैं, उसमें बहुत शाखाएं और प्रशाखाएं हैं। ये सौंदर्य लहरी की टीका में 22 मुनियों का संदर्भ आता है। तो उसमें लोपामुद्रा, फिर आपके अगस्त्य मुनि, सबकी अलग अलग इन्होंने श्री चक्र के साथ साधना के साथ
जो मंत्र जुड़े हुए हैं उन मंत्रों को सिद्ध किया और फिर उन मंत्रों से इसको आगे मतलब सिद्ध करके लोगों को दिया, अपने सारी प्रणालियां बनाई और संप्रदाय बनाए। सो ये बहुत ही विशाल साहित्य है और विशाल दर्शन है, विशाल लिटरेचर है। और मैं कहती हूँ कि इसका शोध अभी शुरू ही हुआ है। इसका शोध हमारी 20वीं सेंचुरी 20वीं शताब्दी में हुआ है आपके, क्योंकि ये शंकराचार्य जी ने बहुत ग्रंथ लिखे और उनके ऊपर कई कमेंट्रीज और टिप्पणी गई है और कई इसका और आगम शास्त्र में तो बहुत ही कम से कम 1200 तो मैन्युस्क्रिप्ट्स मैंने ही देखे हैं श्री चक्र के ऊपर और महात्रिपुर सुंदरी की उपासना के ऊपर, और ये सब मिलते भी हैं। तो ये बहुत विशाल एक विषय है और मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने बहुत ही सरलता से और प्रेम से और समझ से इसको आपने समझाया। और मैं आशा करती हूँ कि ये शोध आगे बढ़े। कई लोग अभी इस आपकी रिसर्च को, शोध को और आपने जिस तरह समझाया इसको समझने की कोशिश की, परंतु ये बहुत रहस्यमय है और गुह्य है। जितनी बार मैं पढ़ती हूँ नित्य षोडशी कार्णवा या काम कला विलास, उतनी ही बार एक नया दिखता है भगवती का। तो मेरी यही, आप सब जो अभी बैठ के ये सुन रहे हैं, मेरी यही आपसे मैं कह रही हूं कि कृपा करके थोड़ा समय ये अति विशाल और परिपूर्ण और समष्टि, बिल्कुल ये व्हाट आई से इंक्लूसिव ट्रेडिशन है। बिल्कुल इसमें अंतर्याग बहिर्याग दोनों का सम्मेलन है। और मैं कहती हूँ कि आजकल की परंपरा में ये बहुत ही जरूरी है कि हम श्री चक्र के आयामों को समझें और इसको आगे बढ़ाएं। सो मैं आज की जो सत्र है ये थोड़े शब्दों में जो मैंने कुछ भी कहा, इसको मैं अब विराम देती हूँ और आप सबको धन्यवाद देती हूँ कि आप यहाँ पे संगठित होकर आपने इसको अच्छी तरह सुना। धन्यवाद। आज सब संघ मित्रा जी कहाँ हैं? धन्यवाद देंगी वो। वेरी इंफॉर्मेटिव। Am I audible? Am I audible? Yes, ma'am. Yes, madam. Yes, ma'am. I, on behalf of National Mission for Manuscripts, express sincere thanks to the speaker, Professor Brajesh Kumar Shukla, for informative and insightful lecture. We knew that Sri Chakra is the integral part of Tantra, but what exactly is its significance has been made very clear. Such a difficult subject, but he has clearly explained everything. And our sincere thanks goes to Chairperson Dr. Madhu Khanna for summing it up in a nutshell, and also has given the different dimension to research on this Sri Chakra. It was a perfect combination. Two eminent scholars of Tantra have come together. National Mission for Manuscripts is grateful to both of them for agreeing to take
part in this virtual form of Tattvada lecture. Thank you. We will publish the lecture in our Tattvada series. Hello. Now I close the section. Thank you. Thank you. बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। अच्छे तुम देखते Thank you, Sanmitra. Thank you. Thank you. Thank you, Madhu. Thank you. very thanks to all of you. Thank you.